Now my question, first of all, do you want to ask anything? Have you completed the first and the second chapter? Yes. Have you completed on your own? हाँ बोलो, क्या तुम लोगों ने पढ़ाई स्टार्ट किया, फर्स्ट और सेकंड चैप्टर कंप्लीट किया? यस मैम। यस चलो मैम। ठीक है। Yes, अगर ma'am. तुम लोग, चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अगर तुम लोगों ने पढ़ाई शुरू कर दिया, फर्स्ट सेकंड चैप्टर खत्म कर दिया है, तो बहुत अच्छी बात है। तुम लोग उसको बार बार देखो, मेरिट डिमेरिट भी देख लो, क्योंकि केस स्टडी में ही मेरिट डिमेरिट भी पूछता है। First of all, you will be asked to identify the name of the business organization, and once you identify the forms of business organization, you will be told to write down the merits and demerit of that form of business organization. तो सबसे पहले तुमसे ये पूछा जाएगा कि जो ये स्टोरी दिया हुआ है, ये कौन से बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का टाइप दिया हुआ है, उसको आइडेंटिफाई करके उसका मेरिट डिमेरिट लिखो। तो सबसे पहले तुम पहचानोगे तभी तो पहचानने के बाद, क्योंकि मान लो कि दिया हुआ है पार्टनरशिप और तुमने प्राइवेट कंपनी मान करके लिख दिया, तो प्राइवेट कंपनी तुमने लिख दिया और तुम उसके साथ साथ उसका मेरिट डिमेरिट भी लिख देते हो, तो सारा का सारा गलत हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड लर्न द how to identify the forms of business organization. Okay, I am closing that chapter, and we have to move to the third unit, but third chapter in fact. But before starting the third chapter, let me ask some question from you all. That is, can you answer me one question? That is, yesterday I had asked some multiple choice question from you. Okay, now tell me. I'm not asking multiple questions. I'm asking answer question which requires answer in at least 3 to 4 marks. Like, listen carefully. A question is, I am giving one statement. Identify the statement. Actually, it is not to be identified. You have to simply give your own opinion. ठीक है? जिस बच्चे को भी ये आएगा वो आराम से आंसर कर सकता है। जैसे कि one man control is the best in the world if that man is being big enough to manage everything. Explain the statement. Once again, I am repeating my statement. My statement is, one man control is the best in the world if that man is big enough to manage everything. Explain the statement. What would you write? Whatever ideas are coming in your mind, explain it. It may be correct, it may be wrong, but this is a platform where we have to discuss about several type of case studies. Ma'am, कोई the बात statement tells that if a person is able to control all the business activities by himself, then the best form of business for him is the sole proprietorship. So he should manage. So if he can manage the business by him, all the activities by himself, then he should go for the sole proprietorship and enjoy all the profit and bear all the risk. Right? Yes. Yes. Very good. This statement is talking about the sole proprietorship, and it is 100% true that if I am able to control my business on my own alone, then I should not involve anybody else. Why should I share my profit? I do not want to share my profit if I am carrying all type of the social responsibility as well, and I am investing sufficient capital in my business. I am managing everything, field work, auditing work, production. If I am carrying all type of economic responsibility or the business responsibility on my own in a very better manner, then I should not involve anybody else, because I am the master of everything. I am the master of everything. So I am balancing among different fields on my own. That is the example of the sole proprietorship. Along with this type of explanation,
you are advised to write the advantages or the merits of the sole proprietorship as well. ठीक है, अगर तुम ये तो स्टेटमेंट तो भाई 100% करेक्ट है, ये तो बिल्कुल सही है कि जो बिजनेस मैं अकेले संभाल सकती हूँ और मैं बिल्कुल अच्छी तरह से मैनेज कर सकती हूँ, तो क्या ये बेस्ट मेथड होगा? ये सवाल था। बिल्कुल ये बेस्ट मेथड है, क्योंकि सारा मेहनत मेरा और सारा फायदा भी मेरा। ठीक है, थोड़ा बहुत अगर लॉस मुझे लगता है कि प्रॉब्लम मुझे हो रहा है, then I can invite somebody else to join, then it will become the partnership form of business organization. लेकिन जब मैं सारा काम खुद कर रही हूँ, अच्छे से कर रही हूँ, तो सोल प्रोप्राइटरशिप ही सही है, क्योंकि सारा प्रॉफिट मेरा उसमें होगा। अच्छा, ये बात लिखने के बाद तुम लोग क्या करोगे? सोल प्रोप्राइटरशिप का फिर उसका एडवांटेजेस लिख दोगे। ये होगा तुम्हारा पहला सवाल। नाउ आइडेंटिफाई whatever statement I am giving you, you have to identify ये क्या है। First, a question is name the following. अनेक शब्दों के एक शब्द, तुम लोगों ने पढ़ा होगा हिंदी में, अनेक शब्दों के एक शब्द। ठीक है, क्या कहते हैं, जो बहुत क्या कहते हैं, जो कहते हैं ना कि जो बहुत ही मेहनत करता है तो उसके लिए कहते हैं मेहनती। जो बहुत हिम्मत वाला होता है तो एक वर्ड होता है साहसी। ठीक वैसे इसमें भी एक दिया हुआ है क्वेश्चन, यू हैव टू आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ दिस फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। फर्स्ट, a partnership set up for a specific project. सोचो, you can take the help of your book, you can take the help of it. particular partnership, पर्टिकुलर पार्टनर। हाँ, वहां पर किसी खास प्रोजेक्ट के लिए मैंने बताया था ना कि जब बिल्डर लोगों को जब बिल्डिंग बनाना होता है, चाहे जब अपार्टमेंट बनाते हैं, तो उस समय वो काम करते हैं साथ में। जैसे ही अपार्टमेंट का काम खत्म हो जाता है, फिर वो चले जाते हैं। मर्जी दोबारा काम साथ में कर सकते हैं, मर्जी है छोड़ सकते हैं। तो जब किसी खास प्रोजेक्ट के लिए जब साथ में काम करते हैं, तो वो हो जाएगा पर्टिकुलर पार्टनरशिप। नेक्स्ट, a document containing terms and conditions of partnership. Partnership deed. Partnership deed. ठीक है। Next, a person who lends his name and goodwill for the benefits of a partnership firm. A person who lends his name. मेरा नाम ले लो, मैं बहुत ही पॉपुलर सेलिब्रिटी हूँ। ठीक है, और नॉमिनल पार्टनर। नॉमिनल, हाँ, नॉमिनल पार्टनर। इसका मतलब है कि तुम लोगों को भाई अपना प्रोडक्ट लॉन्च करना है, तुम लोग छोटे मोटे प्रोड्यूसर हो और मैं एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी हूँ, तो तुम लोग मुझसे रिक्वेस्ट करते हो, तो मैं कहते चलो ठीक है भाई, तुम्हारा भला हो जाएगा तो मुझे पुण्य मिलेगा। ठीक है, तो मैंने अपने नाम को यूज करने का तुम्हें परमिशन दे दिया। तो नॉमिनल, ये क्या हो गया? नाम का नॉमिनल, नाम का नॉमिनल। ठीक है, nominal partner. Next, a person who contributes capital, participates in the business, but whose identity is not disclosed to outsiders. Secret partner. मैम सीक्रेट पार्टनरशिप। सीक्रेट, हाँ, सीक्रेट पार्टनर। चलो ठीक है, गुड। तो ठीक है, अब एक दूसरा क्वेश्चन। चलो अब हम लोग चेंज करते हैं। तुम लोग तो बहुत स्मार्ट हो गए हो भाई, चलो तुम लोग बहुत पढ़ाई कर रहे हो। हाँ, बुक सामने मत रखना। ठीक है, चलो। A question is, the business assets of a firm are worth ₹80,000, but the debts unpaid are worth ₹1 lakh. What course of action can the creditors take in the following cases? मतलब 80,000 मेरा जो बिजनेस एसेट है वो 80,000 का है, मेरा जो बिजनेस का एसेट है वो 80,000 का है, लेकिन मेरे ऊपर उधार आ गया 1 लाख का, 20,000 ज्यादा। तो what course of action can the creditors means one who has taken one who has given his money to me, उधार देने वाला,
creditors. What course of action can be creditors take in the following cases? First, the organization in sole proprietorship form. क्या होगा? The sole proprietor would be asked to sell his own property, Repeat. personal property. Repeat. Sole proprietor is asked to Personal sell his property own would property. be sold for prepayment of debt. Sell his own हाँ property. हाँ, ओन प्रॉपर्टी, इसका मतलब ये अनलिमिटेड लाइबिलिटी हो गया उसका, ये उसका अनलिमिटेड लाइबिलिटी होगा. तो ये सोल प्रोप्राइटर जो होगा वो उसकी अनलिमिटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी और उसका पर्सनल प्रॉपर्टी भी सेल करके उसको चुकाना होगा. ठीक है. क्रेडिटर्स आर फ्री टू गेट बैक हिज और हर मनी आफ्टर सेलिंग द पर्सनल प्रॉपर्टी और द पर्सनल एसेट ऑफ द सोल प्रोप्राइटर. Second option, second question है, statement is same, but the second question, the organization in partnership formed with A and B, two partners sharing profit equally. The organization in partnership, पहले बार तो सोल था, अब हो गया the organization in partnership formed with A and B, two partners sharing profit equally, जहाँ पे दोनों का equal. हाँ बोलो. Both the partners will have to share the rest amount equally. हाँ ठीक है, good. Both the partners have to pay the debts on the equitable basis. If one is refused to pay the loan, the amount of the loan, then second will be responsible to pay or to clear out all the debts. अगर एक ने मना कर दिया तो दूसरे की जिम्मेदारी ये बन जाती है कि भाई वो क्लियर करे. ठीक है. चलो. Now I want to start the next second chapter. I want to start the third chapter. Please, please all children, you have to come to the third chapter. सबसे पहले हम लोग थर्ड चैप्टर शुरू करते हैं. In third chapter, the name of the third chapter is the private, public and global enterprises. Private, public and global enterprises. In this chapter, we will see mainly about three things. Three things, that is the departmental undertakings, statutory corporation and government companies. Okay, three types of public sectors are there. Three parts are there of the public sector, namely departmental undertakings, statutory corporation, and third is the government company. Now come to the first component, first part of public sector. First part of public sector, that is the departmental undertakings. Have all the children's came to the page number 58 in my book, but in your book it may be 61 or 62. See the topic departmental undertakings. क्या तुम लोग वो देख रहे हो उस टॉपिक को? Yes, ma'am. उस टॉपिक को तुम लोग आगे? Yes, ma'am. हाँ तो चलो हम लोग अब शुरू करते हैं. The first is the departmental undertakings. Now children listen carefully. Private, public and global enterprises. In the first term is the private, public and global enterprises. The private term has not given in this chapter because private company or the private sector has already been discussed in the second chapter. Maybe it partnership, sole proprietorship, joint Hindu family business, joint stock company, all have been discussed in the second chapter. So the name of this chapter is of course private, public and global enterprises, but private sector has already been discussed in the second chapter. Okay, so we will not discuss private sector in this chapter. We will be focusing especially on the public sector. Now, public sector is of three types. That is the departmental undertakings. Second is the statutory corporation. Third and the last is the government company. अगर तुम्हारे पास फ्लो चार्ट होगा तुम्हारे चैप्टर, तुम्हारे बुक में दिया हुआ होगा तो तुम लोग उसको ध्यान से देखो, उसमें ये तीन नाम दिए हुए हैं. ठीक है. फर्स्ट इज द डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स. डिपार्टमेंट देखो, जैसे स्कूल में बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं. सीसीए डिपार्टमेंट हो गया, ठीक है, रूटीन का डिपार्टमेंट हो गया, फर्स्ट एड का
डिपार्टमेंट हो गया, उसमें टीचर्स कुछ होते हैं, कुछ ये एकेडमिक डिपार्टमेंट में टीचर्स को डाल दिया जाता है, कुछ स्पोर्ट्स का डिपार्टमेंट होता है, तो बहुत तरह के डिपार्टमेंट होते हैं। फिर एक होता है टीचिंग डिपार्टमेंट, उसमें टीचर्स आते हैं। फिर एक होता है नॉन टीचिंग डिपार्टमेंट, उसमें ऑफिस के स्टाफ आते हैं। तो जैसे एक स्कूल के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, बहुत सारे सेक्शंस होते हैं, ठीक उसी तरह से जो हम लोग डेली जो गवर्नमेंट को देखते हैं, चाहे वो जो अभी जो गवर्नमेंट चल रही है, तो उसमें बहुत सारे कैबिनेट्स होते हैं, तुम लोगों ने देखा होगा, बहुत सारे कैबिनेट्स होते हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं। एक फूड डिपार्टमेंट हो गया, एक ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट हो गया, एक एजुकेशन का कैबिनेट हो गया, ठीक है, एक रेलवे का डिपार्टमेंट हो गया, ठीक है। तो इतने सारे जो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट होते हैं, उसमें ये पता चलता है कि गवर्नमेंट कैन बी रन with the help of several departments, because a country is very huge, country is very big, and this big country cannot be controlled only by one single department, so government make several type of department, and all department help the government in running the country in a smooth manner. इसी तरह से गवर्नमेंट क्या करती है, बहुत सारे डिपार्टमेंट को बना देती है। गवर्नमेंट बहुत सारे डिपार्टमेंट को बना देती है, जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4, ठीक है, मतलब चारों तरफ डिपार्टमेंट बना देती है। मैं ऐसे क्यों कर रही हूँ, मैं ऐसे इसलिए कर रही हूँ ना, क्योंकि ये जो मैं हो गई, मैं सेंटर में हो गई, मैं सेंटर में हो गई, और ये जो मेरा सेंटर है, ये पूरे चारों तरफ डिपार्टमेंट से ढका हुआ है, और सेंटर जो है वो डिपार्टमेंट के हेल्प से ही चलता है, ठीक है। सेंटर जो है वो डिपार्टमेंट के हेल्प से चलता है। इसका मतलब है कि रेलवे एक डिपार्टमेंट हो गया, पोस्ट एंड टेलीग्राफ एक डिपार्टमेंट हो गया, है ना, तो एजुकेशन एक डिपार्टमेंट हो गया, एजुकेशन एक डिपार्टमेंट हो गया। तो सेवरल डिपार्टमेंट्स आर मेड बाय द गवर्नमेंट, एंड ऑल दैट डिपार्टमेंट्स आर टुगेदर कॉल्ड द गवर्नमेंट, ऑल दैट डिपार्टमेंट्स आर टुगेदर कॉल्ड द गवर्नमेंट, मतलब वो गवर्नमेंट बॉडी हो गई। बिल्कुल ऐसे ही रेलवे का तुमने नाम बिल्कुल सुना होगा, कोल इंडिया लिमिटेड है, पीएनटी है, पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट है, दूरदर्शन है, दूरदर्शन जो कि चैनल हम लोग बहुत कम देखते हैं, प्रसार भारती है। तो दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ द गवर्नमेंट और द डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। ये प्योर गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, ये प्योर गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है। इसमें गवर्नमेंट लोगों को सेलेक्ट करती है, ठीक है, गवर्नमेंट लोगों को सेलेक्ट करती है, और जो इसमें काम करते हैं उसको सरकारी कर्मचारी कहा जाता है, उसको गवर्नमेंट एम्प्लॉयज कहा जाता है, ठीक है। अब देखो तुम्हारी बुक में पता नहीं क्या दिया हुआ है, लेकिन मैं ये तुम लोग को समझा रही हूँ, तुम लोग इसको ध्यान से पहले देखो तो जरा। शायद तुम्हारी बुक में पता नहीं कुछ होगा, मेरी पुरानी बुक है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। देखो ये जो है ये फ्लो चार्ट है, फ्लो चार्ट है, ये इंडियन इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी, ठीक है। आई एम टॉकिंग अबाउट द सेकेंड चैप्टर प्राइवेट पब्लिक एंड थर्ड चैप्टर प्राइवेट पब्लिक एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस, चैप्टर नंबर 3. In third chapter, the important first topic is the public sector. The important first topic is public sector. Private sector is obviously given. The name of the chapter is private, public and global enterprises. Private, public and, ठीक है, लेकिन प्राइवेट से शुरुआत नहीं किया है, इस चैप्टर का शुरुआत प्राइवेट से बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि प्राइवेट, देखो इंडियन इकोनॉमी कैन बी divided into 2 parts, public sector and private sector. Private sector again can be classified into several parts: sole proprietorship, partnership, JHF which we have completed, cooperative, ठीक है, company, joint stock company. This topic is not given in the second chapter, so I left it. अब इसके बाद कंपनी का 2 पार्ट जो हम लोगों ने कल देखा था, तो ऑल दीज आर द पार्ट ऑफ द प्राइवेट सेक्टर, ठीक है। अब प्राइवेट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है पब्लिक सेक्टर। इंपॉर्टेंट तो भाई दोनों है, लेकिन पब्लिक सेक्टर को क्योंकि गवर्नमेंट मेंटेन करती है, इसीलिए मैं इसको इंपॉर्टेंट कह रही हूँ, अदरवाइज बोथ आर इंपॉर्टेंट। अभी
आगे क्या? अच्छा ठीक है, चलो। अच्छा अब क्या इसमें? डिपार्टमेंटल, ऐसे करके धीरे धीरे ऐसे करके ये सब छोड़ सकते हो बच्चों, तुम लोग इसको छोड़ देना है ना। यहाँ आ जाओ, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स। देखो दिस इज द ओल्डेस्ट सबसे पुराना, दिस इज द, क्योंकि ये अंग्रेज हमको सिखा के गए हैं, ठीक है, ब्रिटिशर्स ये हमको सिखा के गए हैं कि जब जब देश को चलाना होता है तो कुछ डिपार्टमेंट को गवर्नमेंट को कैरी करना पड़ता है। So this is the oldest and most traditional form of organizing public enterprises. These enterprises are established as departments of the ministry. मतलब ये गवर्नमेंट का मंत्रालय होता है। मंत्रालय का मीनिंग समझते हो? मंत्रालय जो बोलते हैं ना बार बार, Yes, ma'am. Yes, हाँ, ma'am. जो टीवी में आता है, न्यूज पेपर में आता है, मिनिस्ट्री, कैबिनेट, मंत्रालय, ठीक है, मंत्री जी हैं उसमें, एंड आर कंसीडर्ड पार्ट और एन एक्सटेंशन ऑफ द मिनिस्ट्री इटसेल्फ, ठीक है। ये जैसे देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये नहीं है, ये नहीं होगा। पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट, PNT, पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट, रेलवे, तो ये दोनों जो है ना इसके नाम का मिनिस्ट्री होता है, इसके नाम का मिनिस्ट्री होता है, ठीक है। इसमें मंत्री जी होते हैं, केंद्रीय मंत्री होते हैं, ठीक है। और वो केंद्रीय मंत्री क्योंकि इसको देख नहीं सकते हैं अपने अकेले, तो बहुत सारे सरकारी कर्मचारी अपॉइंटमेंट होता है और उन्हीं को कहा जाता है गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स, ठीक है, गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स। चलो ये तो हो गया। अच्छा मैं थोड़ा सा अपना प्लेस चेंज कर रही हूँ, ठीक है, थोड़ा सा रूम में कुछ काम हो रहा है मेरे, मैं प्लेस चेंज कर रही हूँ, तो तुम थोड़ा ध्यान से किताब देखते जाना। चल हाँ, तो नेक्स्ट गेस्ट रूम में चलो चलो ठीक है बच्चों, अब हम लोग यहाँ पढ़ते हैं, ठीक है। चलो यहाँ पर है, अब तुम लोग ध्यान से देखो इसको। दे हैव नॉट बीन कॉन्स्टिट्यूटेड एज ऑटोनोमस। अब देखो दिस लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज व्हाई आई हैव मार्क्ड दिस लाइन। दे हैव नॉट बीन कॉन्स्टिट्यूटेड एज ऑटोनोमस और इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन। मतलब ये है ना कि इनका कोई इंडिपेंडेंसी, ये अलग से कोई सेपरेट बॉडी नहीं है बच्चों, ये अलग से सेपरेट बॉडी नहीं है। अगर मैं कुछ काम शुरू करती हूँ पार्टनरशिप में, सोल प्रोप्राइटरशिप में, तो मेरी सेपरेट लीगल आइडेंटिटी है। लेकिन अगर रेलवे में तुम काम करते हो तो रेलवे जो है वो गवर्नमेंट से अलग नहीं है, वो गवर्नमेंट की बॉडी है, तुम्हारा अपना रूल नहीं चलेगा, ठीक है। तो गवर्नमेंट रेलवे के लिए, पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट के लिए कानून बना देती है और उसी के तहत रेलवे चलता है। मतलब रेलवे मंत्रालय होता है, रेलवे डिपार्टमेंट होता है, रेल मंत्री होते हैं, पीयूष गोयल हैं, नाम तुम लोगों ने सुना होगा। तो पीयूष गोयल इसके मंत्री हैं और उन्हीं के अंडर में ये सारा काम चलता है, रेलवे के का काम चलता है। तो इसका मतलब है कि जो भी लोग रेलवे में काम करते हैं उनका सेपरेट आइडेंटिटी नहीं है, रेलवे का गवर्नमेंट से सेपरेट आइडेंटिटी बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है कि जो इसमें काम करता है उनका पहचान सरकारी कर्मचारी की तरह होता है, वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं। यू कैन से इन ऑन योर स्क्रीन, दे एक्ट थ्रू द ऑफिसेज ऑफ द गवर्नमेंट and its employees are government employee, ठीक है। देखो एग्जांपल दिया हुआ है, अंडरटेकिंग्स आर रेलवेज एंड पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट, प्रसार भारती। मैंने देखो यहाँ पर एग्जांपल लिखा, तुम लोग इसको नोट डाउन कर सकते हो। प्रसार भारती, प्रसार PRASAR प्रसार भारती, दूरदर्शन, रेलवे, पोस्ट एंड टेलीग्राफ जो कि तुम्हें यहाँ पर मिला अभी। तो दिस इज कॉल्ड द डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स। क्लियर, बिल्कुल क्लियर सबको? आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक Yes, है, ma'am. तो नेक्स्ट आप नेक्स्ट पहले मैं देखूं कि भाई बच्चे कितने हैं। चलो ठीक है, अच्छी बात है।
स्वर्णिम है, उज्जवल है, चलो उत्कर्ष है, तो ठीक है। मेन कैरेक्टरिस्टिक्स, द फंडिंग ऑफ दिस एंटरप्राइजेस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक चिल्ड्रन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। The funding of these enterprises come directly from the government. The funding of these enterprises come directly from the government treasury. Treasury means खजाना, मतलब कि इन सबको जो पैसे मिलते हैं, हाँ, इन सबको जो पैसे मिलते हैं, चलिए एक मिनट जाओ, चलो बच्चे, थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम हो गया था अभी, एक्चुअली मेरे घर में कुछ काम चल रहा है तो ना, इसलिए। हाँ, चलो आप देखो यहाँ पे, ये गवर्नमेंट के पास जो पैसे होते हैं उसी से इन सब का काम चलता है, ठीक है। गवर्नमेंट का जो के पास जितने भी पैसे होते हैं गवर्नमेंट के खजाने में, ट्रेजरी में, उसी से इसका काम चलता है। प्लस जितने भी पैसे इनके पास आते हैं वो सारा पैसा फ्लो हो करके ऐसे करके गवर्नमेंट के ट्रेजरी में चला जाता है। ये फर्स्ट तुम्हारा फीचर हो गया, ठीक है। The revenue earned by this is also paid into the treasury. जितने पैसे आए वो गवर्नमेंट के ट्रेजरी में जाएगा, ट्रेजरी का सारा पैसा इसके पास जाएगा, मतलब इस पर खर्च होगा, तो सारा गवर्नमेंट ही कंट्रोल करती है। Second, they are subject to accounting and audit controls applicable to other government activities. मतलब कि इनका ऑडिटिंग भी होता है, they are subject to accounting and audit control, यानी कि ये जैसे चाहे वैसे पैसा खर्च नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये सारे पैसे जनता के होते हैं। हमारा जो टैक्स होता है, जो हम टैक्स से जो पैसा जो चुकाते हैं, उसी सारे पैसे को गवर्नमेंट यहाँ पर रखती है और ये पैसा इनके पास जाता है, और इसीलिए हमें पूरा राइट है आरटीआई के तहत ये हम पूछ सकते हैं कि इस डिपार्टमेंट में कितने पैसे खर्च हुए, इसका कितना अर्निंग है, तो ये तुम बिल्कुल आराम से पूछ सकते हो। यानी कि इसके ट्रेजरी को कंट्रोल करने का और उसको ऑडिट करने का हमारा पूरा राइट है, यानी गवर्नमेंट के एक्टिविटी को गवर्नमेंट को हमने चुना है, प्लस गवर्नमेंट के पास जो पैसे हैं वो हमारे टैक्स से गया है, तो ये हमारे पास राइट है कि हम लोग इसको कंट्रोल कर सकते हैं। ये इसका सेकंड फीचर हुआ। थर्ड है, द एम्प्लॉयज ऑफ द एंटरप्राइज आर गवर्नमेंट सर्वेंट। गवर्नमेंट सर्वेंट, ये जो लोग इसमें काम करते हैं वो सरकारी नौकर होते हैं, ठीक है। रिक्रूटमेंट जो इसका होता है, जो भर्ती होती है, अपॉइंटमेंट होता है, जो लोग इसमें जाते हैं जॉब करने के लिए वो गवर्नमेंट के अंडर में रहते हैं। दे आर हेडेड बाय इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, IAS, ठीक है। इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज होता है, इंडियन रेलवे सर्विसेज होता है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस होता है, जो कि हर साल इसका एग्जाम होता है। तुम लोग को पता भी होगा, इसमें रिटेन होता है, इंटरव्यू होता है, ऑब्जेक्टिव पहले एग्जाम होता है, फिर सब्जेक्टिव एग्जाम होता है, फिर इसमें इंटरव्यू होता है, फिर सिलेक्शन होता है। तो उन्हीं को इसको कंट्रोल करने के लिए, यानी इस डिपार्टमेंट को, डिपार्टमेंटल इंटरप्राइजेस को कंट्रोल करने के लिए इसके तहत लोगों का अपॉइंटमेंट किया जाता है। और तुम जब इसमें चले गए तो तुम्हारा बहुत बड़ा रुतबा होगा, तुम्हारे पास बहुत पावर होगा, ठीक है। तो सोच सकते हो तुम लोग इसके बारे में, बहुत अच्छी चीज है। इट इज जनरली कंसिडर्ड टू बी अ मेजर सब डिविजन ऑफ द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, ठीक है। मतलब ये गवर्नमेंट का ही ये एक्सटेंशन है, ये गवर्नमेंट का ही एक्सटेंशन है। दे आर अकाउंटेबल टू द मिनिस्ट्री, यानी मिनिस्ट्री मतलब कि रेलवे में क्या काम हुआ, पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट में क्या काम हुआ, कैसे काम हुआ, पूरा हुआ, अधूरा हुआ, क्या हुआ, फायदा हुआ, नुकसान हुआ, एवरीथिंग इज ट्रांसपेरेंट इन दिस डिपार्टमेंट। मतलब क्योंकि ये अकाउंटेबल है,
ठीक है, ये डिपार्टमेंट सरकार के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इनफैक्ट ये खुद ही सरकार है, ठीक है, लेकिन ये जनता के प्रति इसका जवाबदेही है। They are accountable to the ministry since their management is directly under the concerned ministry. मिनिस्ट्री ही इसको संभालता है, तो जो लोग इसको संभालते हैं ये लोग मिनिस्ट्री के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, लायबल होते हैं, अकाउंटेबल होते हैं। Clear? Is that clear to all? Yes, बिल्कुल ma'am. clear? Yes, ma'am. Yes, हाँ, ma'am. सुनो, अब तुम लोग देखो, अब तुम लोग एक चीज पहले देखो, ये तो खैर चलो ठीक है, तो बच्चों चीज हो गई। फीचर्स ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स। अब जल्दी से हम लोग ना एक तरह का बहुत ब्रीफिंग करते हैं, जल्दी जल्दी फास्ट। सारा मैं केवल पढ़ रही हूँ, तुम लोग इसको मन में सोचते जाना कि मैम इसको समझाई है कि नहीं। दे ऑपरेट अंडर द ओवरऑल कंट्रोल ऑफ वन ऑफ द मिनिस्ट्रीज ऑफ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। They operate under the overall control of one of the ministries of central or state government. इसको सेंट्रल गवर्नमेंट के मिनिस्ट्री के अंतर्गत ये आता है। रेल मंत्रालय के अंदर ये डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग आता है। रेल डिपार्टमेंट हो गया, पीएनटी डिपार्टमेंट हो गया, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्सेस हो गया, ठीक है। अच्छा, फिर हो गया नेक्स्ट है, दे आर अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट ओनली, देयर इज नो सेपरेट एंटिटी। कोई सेपरेट एंटिटी नहीं है, क्योंकि ये खुद ही गवर्नमेंट है, खुद ही गवर्नमेंट का ये पार्ट है, इसलिए इसका पहचान कोई अलग से नहीं है। थर्ड, दे आर फाइनेंस्ड फ्रॉम द एनुअल बजट। हर साल जो बजट आता है फरवरी के लास्ट में, उसमें इसके लिए पैसे अलॉटमेंट होते हैं, पैसा जाता है इसके लिए। तुम लोगों ने सुना होगा कि रेलवे के लिए 5,000 करोड़ रुपए दिया गया, ठीक है। पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट के लिए 500 करोड़ रुपए दिया गया। तो एनुअल बजट में गवर्नमेंट इसके लिए पैसे खर्च करती है, रखती है पैसे। द रेवेन्यूज ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स आर डिपॉजिटेड इन द ट्रेजरी ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के ट्रेजरी में इसका जो पैसा, जो फायदा होता है, जो कमाई होती है, वो गवर्नमेंट के ट्रेजरी में जाता है। ओके, ठीक है। नेक्स्ट, द स्टाफ ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स आर सिविल सर्वेंट। ये सिविल सर्वेंट होते हैं, ये सिविल सर्वेंट होते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट, जल्दी से चलो। अगर बच्चे जब लीव करते हैं ना, या तो खुद लीव करते हैं या लीव हो जाते हैं, तो जल्दी से, नाम तो खैर इसमें आ जाता है, पता चल जाता है, तो भाई छोड़ के जाना नहीं। दे आर अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द डिपार्टमेंटल है, ये डिपार्टमेंट के हेड होते हैं। डिपार्टमेंट का एक हेड होता है, उसके अंडर ये डिपार्टमेंट काम करता है। ओके ओके उत्कर्ष, ओके चलो ठीक है। दे कैन बी sued in the same manner. What is the meaning of sued? Let me know whether you all have followed the meaning of sued or not, because earlier I have cleared the meaning of Criminal sued. case. हाँ, क्रिमिनल केस, मतलब इसके ऊपर केस हो सकता है। अगर मान लो कि तुम्हें गलत टिकट, तुमने रिजर्वेशन तुमने कराया और वो डेट ही गलत उसमें प्रिंट हो गया, कुछ भी है, तो ये तुम रेलवे डिपार्टमेंट के अगेंस्ट में तुम केस कर सकते हो। रेलवे डिपार्टमेंट के अगेंस्ट में तुम केस कर सकते हो। ऊपर से अगर तुम्हारी कोई गलती है तो रेलवे भी तुम्हारे ऊपर केस कर सकता है, ठीक है। तुमने रेलवे की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया, लिखा रहता है ना कि रेलवे संपत्ति राष्ट्र की संपत्ति है, और इसको नुकसान न पहुंचाए, तो बहुत से लोग ना वो क्या करते, अपना प्रॉपर्टी समझ के उखाड़ के घर ले जाते हैं। तो रेलवे उस आदमी के अगेंस्ट में केस कर सकता है, ठीक है। तो वही इसका मीनिंग है, दे कैन बी sued इन द सेम मैनर एज वन कैन फाइल अ सूट अगेंस्ट द गवर्नमेंट। मतलब तुम भी गवर्नमेंट के अगेंस्ट में केस कर सकते हो। तो यू हैव गॉट अ वेरी बिग पावर अगेंस्ट दिस टाइप ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स। तो ये गवर्नमेंट का है, तो क्या हुआ, अगर ये गलती करता है तो तुम केस कर सकते हो, ठीक है। बिल्कुल क्लियर, Yes, ma'am. क्लियर। Yes, चलो ma'am. ठीक है, चलो ठीक है। हाँ भाई, इतना गा के बोलोगे तो फिर कैसे, फिर मैं क्लास कैसे खत्म करूंगी। चलो, एनी क्वेश्चन,
Any question or else the next topic is the statutory corporation, but I don't want to start it because there's much time and only 1 minute is left. If you want to ask any question, you can ask. अगर कुछ भी पूछना है तो पूछ सकते हो, बोलो. Before 7th of September, I will complete the revision work. ठीक है. अब इसके बाद तुम लोग केस स्टडी का प्रैक्टिस करते रहो. केस स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है. चिल्ड्रन, ऐसा नहीं है कि केवल केस स्टडी आएगा. Besides case study, direct question generally asked. That is, what do you mean by partners by estoppel? Partner by estoppel क्या होता है? Rights and merits and demerit of private sector. What is called joint stock company. So be ready for this type of direct question also, and be ready especially for the case studies type of question. MCQ, fill up the blanks, match the following. Every type of question can be asked to you. So prepare yourself for this type of question in the examination. क्लियर. और स्नैप होमवर्क भी सारे बच्चे अपने को अभी बिल्कुल अपडेट कर लो. कुछ प्रॉब्लम होगा तो तुम लोग प्रभा मैम से बात कर लेना. ठीक है. ओके. Thank you, ma'am. ठीक है. अच्छा बच्चों सुनो. हाँ, हम लोग को क्या करना है ना कि आज मैं शुरू करने जा रही हूँ मोड शुरू करने जा रही हूँ. मीडियम खत्म हो गया, मोड शुरू कर रही हूँ. मोड थोड़ा टफ है, ये तुम्हारे लिए नया टॉपिक है, तो मैं आज मोड शुरू कर रही हूँ. ट्राई टू बी प्रेजेंट इन द क्लास. ओके. बाय. Yes, ma'am. Bye, ma'am. बाय. Thank you. Great. बाय.